those policies. आपके घर में कोई IAS officers, IPS officers, any of? I am the first person in generation. So did you write all those tests? I wrote all the tests. I agree. मतलब I always say that you need four things to pass this exam. Your biggest inspiration? One of the IAS officers I'd interacted with in first year of my college. Answer writing ना एक skill है and it's an acquired skill. आप सोचोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपका वो इम्प्रूवमेंट होगा, तभी टेस्ट इम्पोर्टेंट है. इट्स एन आइसोलेटिंग जर्नी. Like with respect to your approach, ऐसे 5 चीजें that completely transformed, made you from a beginner to a ranker. तो मैं कोई भी मॉक लिखती थी उससे पहले चाय पीती थी और सुबह उठ के कॉफी पीती थी. तो मेरा कैफीन डोज पूरा दिन हाई रहता था. कॉर्पोरेट हैक्स है मुझे लगता है. कॉर्पोरेट हैक्स है. लोग क्या करते हैं, रिवीजन नोट्स को ना सेम नोट्स बना लेते, कोई फायदा नहीं है उसका. तो गुड थिंग आई फाउंड अबाउट द मेन राइटिंग कोर्स वाज इट वाज नॉट जस्ट आंसर राइटिंग. तो आप बेसिक कंटेंट भी कवर करते थे. One myth which you would like to burst about UPSC? That you can't clear it in one attempt. I think because of you, मेरा पहली बार में प्री निकल गया, जो लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं. Actually, I put no to my homestay. What was your last package when you left? I think वो काफ़ी high था, तो let me not disclose it. So I'm taking a pay cut. Hello friends, welcome to Target UPSC. Today we have rank 44 Mudita Bansal. The best part about Mudita's journey is that she cleared it in first attempt. And over that, for Target UPSC, it is our honor because she has been our Sankalp main student first, then joined Sankalp Prelims batch, and she has been our adherent follower of our YouTube channel, our courses. And for her, the foundation was our Sankalp mains batch and Sankalp Prelims batch. I hope I'm not telling anything wrong. No, that's completely true, sir. Like, you were the starting point for my entire journey. So before we start your journey, I would like to hear from you. आपका educational background क्या था? Were you a topper? कैसा आपका पूरा जर्नी रहा अभी तक का बिफोर आपने यूपीएससी स्टार्ट किया? So, I think I've always performed decently well when it comes to my academics. I was always in like top rankers even in my school. In 12th, I actually topped my state for commerce. And then I went to Sriram College of Commerce for my economics honors graduation. I graduated in 2019. But since then, I've actually been working with a management consulting firm full time. It was only when I was working there, actually with bureaucrats and with the governments, that I realized that I just don't want to I don't want to keep recommending policies as an external consultant, but I also want to have a seat at the table to be able to make decisions on my own. So that's what got me to UPSC. So that was your external motivation, looking into bureaucrats, guiding them. So you were basically guiding bureaucrats in policy making, and then thought कि यार मैं ही why can't I implement those policies? Yes. So because as a management consultant, you get a lot of opportunities to interact with high-stake clients. One of them were IAS officers, secretaries, etc. in terms of any research or any solutions or any benchmarking that they needed. So I knew that I can always have a seat on the table for them to be able to discuss what I am talking about, but I can never actually lead those cases. So आपके घर में कोई IAS officers, IPS officers, any officer का history? I am the first person in generations to have written civil services in my family. Oh. And the best part about Mudita, as I said earlier also, it was her first attempt. तो मैं चाहता हूँ कि आपके UPSC का भी journey, when did you start? And till your selection, जब अप्रैल में रिजल्ट आया, तो from 23 to 25, if you can tell your journey, आपने जॉब कब छोड़ा, what was the breaking point कि आपको लगा कि आप छोड़ के continuously पढ़ना चाहिए, ये तो उसके बारे में आप थोड़ा aspirants के लिए please tell them about your journey. मेरा जर्नी स्टार्टेड BCG के साथ में, थोड़ा अनकन्वेंशनल जर्नी रहा है. एक्चुअली इन वन ऑफ माई मीटिंग्स विद अ सिविल सर्वेंट महाराष्ट्र में, इन दैट मीटिंग आई डिसाइडेड कि वो जो IAS ऑफिसर बैठे हैं, मुझे लिटरली उनके जैसा पावर चाहिए, बिकॉज मैं बाहर से जब तक रिकमेंड करती रहूँगी मुझे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. आई थिंक दिस इंटरेक्शन हैपेंड इन मार्च. तो मैंने डिसाइड किया अपनी कंपनी में बात करने का कि प्लीज़ अब मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो. आई डिडंट वांट टू लीव माय जॉब बिकॉज आई लव माय जॉब, टू बी ऑनेस्ट. और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया मैंने वहाँ पे. तो दे अलाउड मी अ 1 year sabbatical कि आप 1 साल के लिए जा सकते हो. बट दैट मीन्ट कि मुझे प्री और मेंस दोनों उस 1 साल में कंप्लीट करना था. एंड बिकॉज सितंबर एंड तक मेंस ख़त्म होता है,
तो मैंने अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 का सबैटिकल लिया, ताकि मेरा प्री और मेंस का मैं प्रिपरेशन करके होपिंग कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा और मैं मेंस लिख सकूँ. सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट माई जर्नी इन अक्टूबर 2023. पहले अक्टूबर 23 टू दिसंबर 23 मैंने अपना बेसिक सोर्सेज कवर किया अलॉन्ग विद मेंस आंसर राइटिंग विच वाज विद द टारगेट यूपीएससी का संकल्प मेंस प्रोग्राम. And I think so it was recommended by your senior or your friend, I guess. Yes, so actually one of my best friends जो who is an IRS officer now, तो उन्होंने 2023 में आपका कोर्स इनरोल किया था. तो एक्चुअली जो उसने मेंस आंसर राइटिंग का क्रैश कोर्स लिया था, मैंने लिटरली वही सेम वीडियो सुना है क्योंकि मैंने अक्टूबर से दिसंबर में पढ़ा था तब तक. I think so, and she's mentioning about Achal Upadhyay, who has been our topper, GS mains topper in 2023. Amazing dedication and consistency by Achal. And जब मैं उसके नोट्स दिखाता हूँ बच्चों को, and he followed adherently. First lecture to last lecture उसने संकल्प का पूरा देखा है. And I think so same you did it. सेम वे, मतलब उसका और मेरा नोट्स के देखेगा तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. सेम पॉइंट्स लिखे हमने, सेम तरीके से लिखे हैं. तो यस, सो दैट्स वेयर आई So October you started your journey. October I started my journey. तो मैं टारगेट यूपीएससी का, तो गुड थिंग आई फाउंड अबाउट द कोर्स मेंस राइटिंग कोर्स वाज इट वाज नॉट जस्ट आंसर राइटिंग. तो आप बेसिक कंटेंट भी कवर करते थे कि हाँ ये गवर्नर होता है, ये मतलब ये इसका पावर्स है, ये इसका पावर्स नहीं है. So you wanted to say कि मतलब it covers the content part also and answer writing part also. आंसर राइटिंग पार्ट ऑल्सो, एग्जैक्टली. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. तो मैं आपका क्लास सुनती थी वो टॉपिक पे, और फिर मैं खुद जाके जो भी बेसिक सोर्स है विच आर द स्टैंडर्ड सोर्सेज जो एस्पिरेंट्स यूज करते हैं उसको रीड करती हूँ. जैसे GS2 के साथ आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया. एग्जैक्टली. तो लाइक अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ आपकी क्लासेस से, तो मैं लक्ष्मीकांत साथ साथ में पढ़ती रहूंगी एंड कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ में पढ़ती रहूंगी. तो मेरा प्री और मेंस दोनों का तैयारी हो रहा है. तो दिसंबर एंड तक जैसे ही आपका कोर्स खत्म हुआ, क्योंकि साथ साथ में टेस्ट भी चलते थे, तो मैं रिवाइज भी करती So did you write all those tests? आई रोट ऑल द टेस्ट, संकल्प मेंस के बैच के सारे टेस्ट. सारे टेस्ट लिखे. So one thing I would like to tell you, जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं मतलब from संकल्प मेंस बैच, मतलब one thing I've analyzed is they have followed all the lectures and they have written all the tests. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आज मैं देख रहा हूँ ना कि कोर्स लगाते हैं but they're not able to complete it. वो बीच में छोड़ देते हैं या मोटिवेशन नहीं रहता. And the students who have done it from zero से the end तक, they've all cleared the examination. So this is one thing I would like to mention also कि इस examination में consistency बहुत important factor है. ज़्यादा. What do you think on that? I agree. मतलब I always say that you need four things to pass this exam. One is consistency. Second is calmness, both physical and mental. Third is being concise, कि अपना सोर्सेज को लिमिट करना ताकि आप उसको रिवाइज कर सको. एंड फोर्थ इज कॉमन सेंस. मतलब लोग रटने के चक्कर में कॉमन सेंस भूल जाते हैं. And the process हम संकल्प मेंस बैच में फॉलो करते हैं is we make you think in the class. How was that helpful in your examination? दैट इज एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत ही आई ओपनर था, क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैंने पहला 1-2 क्लासेस लिया तो सर आपका हैबिट था ना ये कि लाइक ही विल गिव 5 minutes कि तुम्हें सोच के पॉइंट्स लिखना है, और मैं 2 points 3 points लिख पाती थी बिकॉज मैंने कभी कंटेंट ही नहीं पढ़ा था, तो मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था. और आई थिंक अगर जिन्होंने कंटेंट पढ़ा भी होता है ना, उनके लिए भी आंसर पॉइंट्स जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है. तो पहला 1 month आई रियली स्ट्रगल्ड, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था आंसर कैसे देते हैं. बट वो एक स्किल है. आई जेन्युइनली थिंक आंसर राइटिंग ना एक स्किल है एंड इट्स एन एक्वायर्ड स्किल. आप सोचोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपका वो इम्प्रूवमेंट होगा, तभी टेस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका आंसर राइटिंग का स्पीड, आपका तरीका जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बेटर होता है तरीका. And with her, she worked for 6 years. कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं, डायरेक्टली अक्टूबर में स्टार्ट किया. फर्स्ट प्रीलिम्स आई थिंक सो मई में दिया. जून हो गया था. हाँ, मई जून में बिकॉज ऑफ द दिल्ली इलेक्शन थोड़ा पोस्टपोन हो गया था. When was your main? September, I guess. September. 90 days you had, I guess. क्योंकि वो postpone हो गया तो the number of days were not increased. Yeah. And cleared mains also, cleared interview also. मतलब it is like a dream journey for every aspirant. For every aspirant. And before that, I would like to ask you कि मतलब ऐसे कौन से 5 चीजें आपने सही की आपको लगता है कि यार मतलब जैसे आपने 4 चीजें तो बता दी, लेकिन 5 things that really helped you कि ये preparation strategy, not any coaching or with things with respect to your approach, ऐसे 5 चीजें that completely transform, made you from a beginner to a ranker. वो चीज के बारे में मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस करें, क्योंकि आपकी जर्नी एक यूनिक जर्नी है.
हार्डली 5% स्टूडेंट्स आर फर्स्ट इन 5 to 10%, बहुत कम है, एंड उसमें भी टॉप 100 में तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो ऐसे आई वुड लाइक यू टू शेयर दोस 5 थिंग्स. So on the top of my mind, first is definitely PYQs. हम PYQs का वैल्यू अंडर एस्टिमेट करते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. कीप रिविजिटिंग PYQs. आप हर बार PYQ देखोगे ना, आपको कुछ नया दिखेगा. और यूपीएससी अपने PYQs से ऑब्वियसली सेम कभी नहीं पूछेगा, बट उन थीम्स पे पूछेगा, उन टॉपिक से पूछेगा. आप आइडेंटिफाई करने लग जाते हो और आप प्रिडिक्ट करने लग जाते हो कि क्या पूछने वाला है. तो दैट्स फर्स्ट. सेकेंड इज प्लीज ओवरकम योर फोमो. मार्केट में इतना मटेरियल है और इतना रिसोर्सेज है, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं अपने सोर्सेज को या बेसिक सोर्सेज को. लाइक मेरा जर्नी में मैंने बहुत बेयर मिनिमम सोर्सेज से पढ़ाई किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. तो बट मैं उसको बहुत बार रिवाइज करती थी. मतलब मैंने अपने प्री के नोट्स शायद 10 बार और अपने मेंस के नोट्स शायद 5 बार रिवाइज किए होंगे, जस्ट बिकॉज मैंने एक रिविजन स्ट्रैटेजी बना लिया था अपना कि मैं कैसे कम टाइम में ज़्यादा रिविजन कर सकूं. तो क्योंकि आई कम अक्रॉस एस्पिरेंट्स, वो कहते हैं हमारा एक रीडिंग ही नहीं खत्म हो रहा है या एक रिविजन हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, आप नहीं रिकॉल कर पाओगे, आप नहीं रिप्रोड्यूस So कर you पाओगे. revised prelims for at least 10 times, आई रिवाइज, mains for at least 5 times, I guess, यस, मतलब for the examination. बिफोर एग्जामिनेशन, विच इंक्लूड्स कि मैं अगर फुल लेंथ टेस्ट के लिए रिवाइज कर रही हूँ या कुछ भी, बट रिविजन इज रिविजन, आपके दिमाग में बैठ रही है वो बात. तो दैट इज द सेकेंड थिंग. थर्ड इज reproducing what you know. आप प्लीज आंसर, स्पेशली मेंस, बिकॉज मेंस के मार्क्स आपका रैंक डिसाइड करते हैं. आप प्लीज आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए. और आंसर राइटिंग कन्वेंशनल नहीं रहा है. अब जैसे 2019 2020 के टॉपर्स होते थे, वो एसेज लिखते थे या फिर पॉइंट्स भी लिखते थे, बट इन अ स्पेसिफिक वे. अभी विच आई थिंक वर्क फॉर मी इज मैंने अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल काफ़ी चेंज कर दिया. लाइक डायग्राम्स, डेटा, फिगर्स, मैथ्स, चार्ट्स, टेबल्स, कुछ भी ऐसा जो मेरे एग्जामिनर की मोनोटनी ब्रेक करे. अगर उसके सामने 10 कॉपीज पड़ी हैं, एवरी एस्पिरेंट राइट सिमिलर आंसर, सबने वही सोर्सेज पढ़े हैं, तो वो एक को ज़्यादा और एक को कम क्यों देगा. अगर उसके पास कोई डिफरेंशिएटर है तो आप उस पर फोकस कीजिए. फोर्थ इज स्टैटिक इज द किंग. लाइक अगेन कांट फोकस इनफ. प्रीलिम्स तो बहुत इजीली स्टैटिक से निकाला जा सकता है. करंट अफेयर्स येस प्लेज अ रोल आपको एक डिफरेंशिएटर देने के लिए, पर उस पर ओवर इंडेक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत वास्ट है. स्टैटिक पे फोकस कीजिए. एंड फिफ्थ इज जस्ट अगेन बी कंसिस्टेंट. आप मतलब कुछ नहीं हो सकता अगर कंसिस्टेंसी नहीं है. एंड लास्ट में तो ऑब्वियसली इट्स इन लाइक इट्स अ लक फैक्टर एज वेल. यू बिलीव दैट ये थोड़ा लक फैक्टर है? मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है. हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी आपके मतलब पूरे जर्नी में? आपका लास्ट मतलब जो 1 ईयर है, अक्टूबर टू अक्टूबर, मतलब आपका एवरेज स्टडी टाइम ऐसे कुछ था? आपका ना स्टडी टाइम चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के डिफरेंट स्टेजेस में हो. जब मैंने स्टार्ट किया मुझे कोई हैबिट ही नहीं था पढ़ने का, मतलब तो आई वॉज एबल टू स्टडी लाइक 5 घंटा मुश्किल से, क्योंकि मेरा दिमाग बंद हो जाता था. आई यूज्ड टू स्लीप, मुझे नहीं याद हो पाता था चीज़ें. पर अक्टूबर नवंबर ऐसे गया, दिसंबर तक वो 6 आवर्स हुआ, जैन से वो थोड़ा बढ़ के 8 आवर्स हुआ. बट प्री से 2 महीना पहले आई वॉज लाइक अब तो डू और डाई सिचुएशन आ चुका है, तो आई यूज्ड टू डू 10+ आवर्स. एंड बिटवीन जब मेरा प्री क्लियर हो गया, तो प्री और मेंस के बीच में तो बहुत कम टाइम होता है, बिकॉज आपका रिजल्ट 15 डेज के बाद आता है. तो 2.5 मंथ्स में तो कोई लिमिट ही नहीं होता है पढ़ाई का. लाइक आई यूज्ड टू डू मिनिमम 10 आवर्स, एवरेज 12 आवर्स, और कुछ दिन 14-15 घंटा चला जाता होता था. जब मुझे लग रहा है कि अगर मैं जोन में हूँ या मैंने कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लिया. So you're a coffee person. आई एम अ कॉफ़ी पर्सन. एक्चुअली उसमें भी मैंने ना एक ट्रिक ढूंढा कि कॉफ़ी, एंड मेरा ट्रिक है ये, मुझे कॉफ़ी से नींद उठता है और ओवरऑल एनर्जी आता है, पर चाय से ना इंस्टेंट स्प्लैशेस ऑफ एनर्जी आता है. तो मैं कोई भी मॉक लिखती थी उससे पहले चाय पीती थी और सुबह उठ के कॉफ़ी पीती थी. तो मेरा कैफीन डोज पूरा दिन हाई रहता था. कॉर्पोरेट हैक से मुझे लगा. कॉर्पोरेट हैक से है. Right. And how important was your family's role? मतलब how was your first reaction after the selection? आपके family में who all are there and what was their reaction? So in my family मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और एक यंगर ब्रदर है.
everyone was so happy. मतलब I think वो एक दिन and in fact तब से अब तक makes everything worth it. Worth it. क्योंकि The smile on their face. the tears of joy in their eyes. मतलब मेरी दादी, मेरी बुआज वो हर वक्त रो रहे हैं just because they're so happy. जो लोग, जो relatives कभी बात भी नहीं करते थे मेरी family से, they will appreciate and they will reach out. They will try to create that network. मतलब everyone is just so happy. तो Has the life changed? a lot. And how was your response from your boss from corporate side? मतलब did they call you? What was their reaction? कि हमारा एक sincere employee चला गया. Actually mixed reaction था. Mile he was like, "Madam, I'm so happy for you." पर मैंने तो तुम्हारा करियर पाथवे सोच लिया था यहाँ कहाँ. So what is the difference between corporate life? अभी तो you have not experienced government job, लेकिन how was your corporate life? मतलब how many hours did you work? मतलब job profile कैसा था? तो I'm a strategy consultant. वो one of the most demanding jobs है. So like there are a few industries यहाँ पे बहुत ज़्यादा demand hours रहते हैं. जैसे कि आपका investment banking हो या private equity हो या management consulting. So 12 hours is the usual norm. Like when Narayan Murthy said 70-hour work week, मैं already कर रही थी. मुझे वो debate में कोई point ही नहीं दिख रहा था. मैं तो कर ही Exceeding 70 plus. I'm already doing 70 plus. पर corporate, but मेरा corporate job मुझे genuinely लगता है helped my civil services journey. बहुत ज़्यादा तरीके से. Job के साथ तो possible नहीं था. साथ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते. What do you suggest जिनका job 9 to 5 है, not 12 hours? Can they do it or what is the strategy you would suggest कि अगर आप 9 to 5 job में थे? मतलब आई थिंक अगर आप 9 to 5 जॉब में आप कर सकते हैं पर ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा. जैसे मैंने अगर 8 महीने में किया तो ऑटोमेटिकली वो 16 महीने में हो जाएगा और उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होता है. एंड मतलब कॉर्पोरेट जॉब या कोई भी जॉब एट द एंड वो मेंटल फटीग देता है. 5 PM 6 AM you cannot study. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो ना, द बेस्ट टाइम टू इवन प्रिपेयर इफ यू वांट टू स्टार्ट इज द मॉर्निंग आवर्स. क्योंकि once you have done a corporate work या जो भी आपने काम किया है दिन भर 9 to 5 जॉब में, उसके बाद पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. यू नीड रिक्रिएशन. उसके बाद आपका ना दिमाग का अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाता है. तो मेरा ये कॉन्शियस डेलिब्रेट चॉइस था कि मैं 1 साल का सबैटिकल लिख के ही पढ़ाई करूंगी क्योंकि मैं तो एनीवे जॉब के साथ प्रिपेयर नहीं कर सकती थी. बट आई थिंक इट हेल्प्स बिकॉज वन, मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी था तो मेरे ऊपर वो पैसों का प्रेशर नहीं था कि हाँ आई नीड टू अर्न. इफ वी कैन आस्क व्हाट वाज योर लास्ट पैकेज व्हेन यू लेफ्ट? आई थिंक वो काफी हाई था तो लेट मी नॉट डिस्क्लोज इट. तो आई एम टेकिंग अ पे कट ज्वाइन करने के लिए, एक सिग्निफिकेंट पे कट. Okay, significant pay cut. Significant pay cut. So even after having such a high package, मतलब I expect it would be somewhere between 5 to 10 lakhs के बीच में minimum रहेगा. I'm guessing it might be per month. I'm talking about not per year, per month. Being from Shriram College and working with BCG, minimum she would be earning. I'm not disclosing. I'm not just trying to guess from the industry standards. क्या ऐसा motivation था? मतलब you had everything set. Your life was set. Yeah. मतलब दैट वन मोटिवेशन तो ठीक है, मतलब IAS ऑफिसर्स की जगह, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कुछ लगता है? पता है जब आप बाहर से काम करते हो ना तो वाइल सेटिस्फैक्शन होता है काम में, अपने काम में, पर एक कॉन्स्ट्रेंट भी होता है अपने काम में. लाइक दिस एज मच एज आई कुड डू. हमेशा मुझे वो फीलिंग रहता था कि हाँ शायद मैं कुछ और ज्यादा कर सकती हूँ. तो दैट्स व्हाई यू थॉट यू हैड पोटेंशियल टू डू मोर. लुकिंग एट द ऑफिसर्स यू थॉट. एग्जैक्टली. तो आई थॉट कि मतलब अगर मेरे पास पावर होती तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ एग्जैक्टली मुझे क्या करना है या फिर ये करना हो ये नहीं करना है, जो मैं कॉर्पोरेट जॉब में नहीं कर सकती. एंड सेकेंडली जो मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था, मैंने खुद को एक ही अटेम्प्ट दिया था टू बी ऑनेस्ट. यू सेड कि एक ही अटेम्प्ट. मैंने बिकॉज आई डोंट नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है मेरा, तो मैंने यही सोचा था कि एंड इसमें मैं लक फैक्टर पे वापस आती हूँ. आई ऑल्सो बिलीव इन कि लक डेस्टिनी टेक्स यू वेयर यू आर सपोज्ड टू बी. तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया था. मतलब इस साल का प्री का फॉर्म भी नहीं भरा मैंने. ओह. मेरे को पता था कि मैं एक अटेम्प्ट दूंगी, इसमें होता है विद अ गुड रैंक तो मैं जाऊंगी सर्विसेज में, अदरवाइज सिर्फ यूपीएससी इज नॉट द ओनली वे टू कंट्रीब्यूट. So you were happy with your job, but you thought let's give it. I don't want to live with regrets. And मुझे genuinely लगता है कि जितना साल इस एग्जाम की पढ़ाई में आप इन्वेस्ट करते हो वो इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है. हमारे प्राइम ईयर्स होते हैं वो, to be able to contribute both to the society and to yourself and your family.
आप उसको इन्वेस्ट करके ख़त्म नहीं कर सकते हो. इट्स वेरी अनसर्टेन. मतलब अभी मैं इंटरव्यू स्टेज पे पहुंची, व्हाट इफ अगली बार मेरा प्री भी क्लियर नहीं होता. बहुत लोग के साथ ऐसा होता है. तो So plan B was basically going back to your गोइंग बैक टू जॉब, बहुत पैसा कमा के फिर फिलॉन्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना. contributing to the society. आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद द गवर्नमेंट, तो मैं ऑलरेडी कुछ कर रही थी. So आपके लिए वो stressful condition, I think so that was never a point. क्या था ऐसे यूपीएससी प्रिपरेशन में 1 साल में ऐसे कुछ लो पॉइंट्स आए या फिर आपको लगा कि यार नहीं होगा अभी? Did you feel any time? आई थिंक वो हर एस्पिरेंट के साथ होता है. फर्स्ट अटेम्प्ट यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, फैमिली सपोर्ट कर रही है, बैकअप बहुत स्ट्रांग है. आई एग्री. सो मेरे पास देखो एक सेफ्टी नेट था, तो मुझे वो प्रेशर नहीं फील हो जो आई नो बहुत एस्पिरेंट्स को होता है. तो देयर इज़ अ पोजीशन ऑफ डिफरेंस, बट उससे एक एडिशनल प्रेशर आता है, राइट? कि मैंने इतना पैसा छोड़ा है, तो क्या ये वर्थ इट था, या फिर क्या मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ? मोर देन वर्थ इट, क्या मैं जस्टिफाई कर पा रही हूँ? एंड इसीलिए मैं ज़्यादा आर्ज डालती थी कि मैंने इतना पैसा छोड़ा है, तो चलो लेट मी कॉम्पनसेट, कि हाँ मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ कि Right. वो. तो दैट वाज वन. सेकेंड इज इट्स एन आइसोलेटिंग जर्नी. लाइक आपके फ्रेंड्स घूम रहे हैं, आपके लाइक फ्रेंड्स की शादी हो रही है, सब हो रहा है, और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ लक्ष्मीकांत. तो You left all the events एक I साल. left all the events, like not everything, but जैसे मैं प्री के बाद में 2-3 दिन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई, या फिर लाइक मार्च एंड में आई वाज रियली टायर्ड क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ रही थी, तो मैं 3 दिन फिर दिल्ली आ गई अपने फ्रेंड्स के पास में. So on Delhi part, I would like to ask you, ORN कितने टाइम विजिट किया? मैं एक बार ORN गई हूँ अपने मेंस से पहले सिर्फ बुक्स खरीदने के लिए. ओह, मतलब उसके पहले. ना उसके पहले गई और ना मैं उसके बाद में गई. लाइक क्योंकि जब मैं ORN गई, टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगा ORN जाना, बिकॉज आप इतने एस्पिरेंट से सराउंडेड होते हो कि आपको लगता है कि यही दुनिया है. और एंड बिकॉज देयर सो मेनी फेलियर नंबर्स, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, राइट. तो इट क्रिएट्स प्रेशर. तो फिर आई डिसाइड कि ORN से तो नहीं पढ़ना है. द नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू ORN वाज मेरे मॉक इंटरव्यूज के लिए. Apart from her journey, मतलब as you can see, मतलब exceptional journey. I would not call your journey as an a regular journey. मतलब इससे corporates में जो बैठे हैं in at the highest level, they can think about preparing for UPSC. But for a normal individual, मुझे लगता है कि second, third attempt के बाद they should look for a financial backup. जिससे क्या है, एक stability, mental stability बहुत ज़रूरी है to prepare for a longer duration. अगर किसी को करना है तो first you have to secure your financial basis and then you can prepare. मतलब आप थोड़ा सा फ्रीली प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट मेंटल टेंशन. आई एग्री. मतलब आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ईदर फर्स्ट आप 2 साल जॉब करिए, उससे आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी आता है, एंड देन प्रिपेयर करिए. या फिर अगर जैसे आपने बोला कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद में देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि कुछ पैरेलली कर सकते हैं. as we have seen her journey कि उन्होंने कैसे ये किया. But coming back to the core part, she has been one of the GS toppers with respect to उनके numbers. GS3 में one of the highest, GS2 में भी one of the highest, GS4 में भी बहुत अच्छे नंबर है. So कुछ ऐसे points that you would like to tell all the aspirants जो आपने सही किया to get that extra edge in your examination. तो if you could share to our aspirants जो भी अगले साल मेंस लिखेगा या जिन तक बहुत कम नंबर से मिस हुआ है, so if you could add some points for that. आई थिंक GS में स्कोर करने के लिए ना वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर कोई जेनेरिक आंसर लिख रहा है. देर आर 13,000 पीपल जो मेंस लिख रहे हैं. ऑनेस्टली बिलीव मी, लाइक 60% लोग सेम आंसर लिखेंगे. 40% में से 30% लोग ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़ के जाएंगे, जिनके मार्क्स अगर हम देखते हैं कि 50s में 60s में आते हैं, जो ईदर अनसीरियस एस्पिरेंट्स है या बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांस वो प्रिपेयर नहीं कर पाए. तो ऑलमोस्ट 6,000 तो वही, तो 6,000 तो वहीं चले गए. अगर आपको वो टॉप 3,000 में पहुंचना है ना, जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उसके लिए वैल्यू एडिशन इज द ओनली की, और वो बेसिक सोर्सेज से नहीं आएगा. लाइक लक्ष्मीकांत ओनली फॉर पॉलिटी सफिशिएंट नहीं रहेगा. तो चाहे आप अपना कोचिंग को यूज़ कीजिए फॉर वैल्यू एडिशन, चाहे किसी टॉपर को कॉपीज को यूज़ कीजिए, कुछ भी यूज़ कीजिए, बट वैल्यू एडिशन जैसे डायग्राम्स, कमिटी रिपोर्ट्स, केस जजमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैंने कुछ 250 से ऊपर केस जजमेंट से याद कर लिए होंगे, और उसको रिवाइज करते रहना है ताकि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सके एक्चुअल पेपर में, बिकॉज आपके पास जब इतना टाइम प्रेशर है ना, आप नहीं कर पाएंगे. दैट्स वन. सो आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर कि इट इज जो आपको उसकी जर्नी लग रही है कि 1 साल में हो गया, उसके पीछे का हार्ड वर्क देख रहे हो.
आई बेट नन ऑफ द एस्पिरेंट जो सिलेक्ट हुए उनको भी 250 जजमेंट्स पता होंगे. मतलब आई कैन बेट ऑन दैट. सो इट इज नॉट कि यार 1 साल में हो गया, 8 महीने में हो गया. उसके पीछे का हार्डवर्क इज 10x. वो 8 नहीं 80 महीने का हार्डवर्क है, विच शी हैज यूटिलाइज हर टाइम वेरी वेल. तो आप ये मत समझिए कि 8 महीने में इसने कर लिया तो आप भी कर सकते हो. उसके पीछे का हार्डवर्क करना पड़ेगा. आपको लग रहा है ये सिंपल जर्नी, 250 जजमेंट्स, इवन एज अ टीचर आई डू नॉट रिमेंबर. आई एम बी वेरी फ्रैंक विद दैट. तो बीइंग अ एस्पिरेंट इतना करना, कंप्लीटिंग ऑल द GS4 पेपर्स और भी डिफिकल्ट है. सो हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. तो कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. सो आई वांटेड टू मेंशन दैट कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये एक लक वाला गेम है, लेकिन ये लक नहीं है. It's a mix of hard work. It's not luck. Looking at to your journey and जो आपने किया है, it's not luck. Thank you, sir. The second thing again is addressing the demand of the question. Actually, one of my other mentors for my optional used to say, "Ki you need to write answer, not your notes." It's so true. Perfect. And मतलब you must have noticed, मैंने बहुत बार ये पॉइंट्स अंकल मेज पे बोला है कि 90% मिस द डिमांड. वो यही लिखते हैं जो उनको पता है. जो पता है, यूपीएससी वो नहीं पूछ रहे जो तुम्हें पता है. तो अगर उन्होंने पूछा है कि चाइना और इंडिया को कंपेयर करो ऑन XX, आप वाई का आंसर नहीं दे सकते क्योंकि आपको वाई आता है. तो डिमांड, पहली बात तो आइडेंटिफाइंग कि क्या क्या पूछा है, क्योंकि यूपीएससी बहुत स्मार्ट है. वो एक चीज नहीं पूछता, वो 3 चीजें पूछता है. आइडेंटिफाइंग वो 3 क्या चीजें पूछ रहा है एंड हर पार्ट को सफिशिएंटली एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए मैं ये एज अ रूल, जो कि मैंने आपके आंसर राइटिंग से आज के सीखा, मैं अपना डिमांड आइडेंटिफाई करती थी अंडरलाइन करके, और फिर उसके बाद में उसका हेडिंग डाल के, उसको बॉक्स डाल के 1 2 3 करती थी ताकि एग्जामिनर को दिखे मैंने लिखा है. एंड आई थिंक सो संकल मेंस बैच के हर एक पेपर में, इफ यू हैव नोटिस्ड, मैं एक क्वेश्चन देता था कि आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है. सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन है, आई एग्री, जिसमें लिमिटेशन पूछा तो लिमिटेशन ऐसे बॉक्स करके 1 2 3 4 एंड मेजर्स पूछा है तो 1 2 3 4. एंड दैट, मतलब मेरे प्रिपरेशन के जर्नी से, या मैं जब टॉपर्स की कॉपीज एनालाइज किया, सो दिस इज द कोर पार्ट विच जो एस्पिरेंट्स मिस कर रहे हैं. गेटिंग ए इंटरव्यू कॉल इज वेरी इजी. मतलब क्योंकि आधे लोग तो नॉन सीरियस है, दे आर नॉट रेडी, उनके नोट्स रेडी नहीं है बिफोर मेंस. क्योंकि आपका तो आपने अक्टूबर से दिसंबर तक नोट्स बना लिए थे, उसके ऊपर एनरिचमेंट करना इज इजी पार्ट. आई एग्री. लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे प्रीलिम्स के बाद, नहीं हो इट्स सकता. इम्पॉसिबल. नहीं. स्पेशली बहुत लोगों को लगता है प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन सेम ही है. वो ऐसा नहीं It's है, not true. कंप्लीटली डिफरेंट है. एंड आपने, द बेस्ट पार्ट वाज यू स्टार्टेड मेंस फर्स्ट, मुझे लगता है, एंड देन उसके साथ आपने प्रीलिम्स को ये कर लिया, कॉम्प्लीमेंट किया. आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन से स्टार्ट करो और फिर प्री, बिकॉज बहुत कम टाइम है, कम टाइम मिलेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट थिंग यू सेड वाज एनरिचमेंट. यू डिड, आपने मतलब जजमेंट्स, डेटा, डायग्राम्स, टेबल्स ये किया. सेकंड वाज डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस. एनीथिंग एल्स? यू डिड इट राइट. जस्ट कंप्लीट द पेपर. कंप्लीट द पेपर. थर्ड वाज कंप्लीटिंग द. उसमें ही 40% बच्चा निकल जाता है बिकॉज वो नहीं कंप्लीट कर पाता पेपर. एंड हाउ डिड यू हैंडल क्वेश्चंस व्हिच यू डिडंट नो? सो इसके लिए क्या करना है, देयर इज लाइक अ प्रॉपर वे इन विच यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर. मैं पहले के 5 मिनट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूटिलाइज करने. आप आइडेंटिफाई कर लो आपके कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, अटेम्प्ट उनको पहले करना है. ट्राई करो कि अगर 7.5 मिनट में वो क्वेश्चन लिखना है 10 मार्क्स का, तो आप उसको 7 मिनट में करो, जस्ट बिकॉज यू नो इट सो वेल. फॉर एग्जाम्पल, GS2 में लास्ट ईयर इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आया था, हर एस्पिरेंट ने वो प्रिपेयर किया होगा. तो आप जल्दी से लिखो ताकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे. फिर आते हैं जो आपको मीडियम तरीके से आते हैं, उस पर आप जो आपने पहले टाइम बचाया ना, आप उसको यूटिलाइज करो ताकि आप उसको एक डिसेंट क्वालिटी को ला सको. एंड हर पेपर में से 4-5-6 क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उस पर 10 मिनट नहीं स्पेंड करना है. नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा कोई कंटेंट नहीं आ जाएगा वहाँ पे बैठ के, उसको आप 6 मिनट में लिखो, 7 मिनट में लिखो, खुला लिखो ताकि आपका पेज भर जाए. खाली नहीं छोड़ना है. सो मतलब वहाँ आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हो टॉपिक से, जो आ रहा है वहाँ आप यू कैन पुट दैट नॉलेज. कॉमन सेंस आता है. कॉमन सेंस, यहाँ पे कॉमन सेंस आ रहा है. जैसे पब्लिक एजुकेशन एक्ट आया था लास्ट टाइम पे, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, सॉरी. अब वो किसी ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हो सकता कि उसका ऑब्जेक्टिव और मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये पूछा हुआ था यूपीएससी में, या फिर वो स्टेट एग्जाम्स पे होता है एप्लीकेबल कि नहीं होता है. कॉमन सेंस क्या बोलेगा कि कोई भी ऐसे लीकेजेस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रॉपर स्ट्रीमलाइनिंग के लिए, डिजिटल सोर्सेज के लिए, जो कॉमन सेंस आपने ऑब्जर्व किया होगा. मैं लिटरली पेपर में वही लिख के आई थी. कुछ साल पहले देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी, सिमिलर. नो वन रीड्स अबाउट दीस पॉलिसीज. एग्जैक्टली. अब चिल्ड्रंस का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, हेल्थ देखना है, एजुकेशन देखना अब कॉमन सेंस है.
And I think so वो बहुत सारा एंड मोमेंट पर वो आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि इतना सारा प्रेशर होता है. तो एज यू सेड कामनेस बिटवीन द पेपर्स. कामनेस एंड फंजिबिलिटी. एक्चुअली ये चीज़ भी ना मैंने देखा है बच्चे कम करते हैं. इज GS2 का अगर पेपर है, आपके दिमाग में सिर्फ साइलो GS2 चल रहा है. इट्स नॉट, मतलब UPSC ने सेग्रीगेट किया है सिलेबस का, मतलब ये नहीं कि आपको भी सेग्रीगेट करना है सिलेबस. आप GSC का कंटेंट GS2 में यूज़ कीजिए. जैसे मेरा एथिक्स का, अगर आपने इस बार का केस स्टडीज देखा हो तो उसमें ना बहुत इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस थे. मैंने अपना GSC का जितना कंटेंट था अपने एथिक्स के पेपर में लिखा है. एंड लिटरली कमिटी रिपोर्ट्स एंड नेम्स कि जैसे इस कमिटी ने बोला कि ऐसे करना चाहिए तो मैं तो यही करके आऊंगी. तो इस तरह से मेक योर कंटेंट फंजिबल. मतलब इंटरलिंकेजेस करना है. इंटरलिंकेज ये भी आपने एक्चुअली काफी सिखाया था. इंटरलिंकेजेस सो फर्स्ट लेक्चर से ही हम इंटरलिंकेजेस पर बहुत ज्यादा. राइट. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे ब्रेन का कैपेसिटी लिमिटेड. मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज नॉट, वी डू नॉट हैव 100 GB ऑफ स्पेस. आई एग्री. 5 GB है, उसको ही you have to utilize at multiple places. Next is मतलब for prelims, anything special you did prelims के लिए क्या किया? क्योंकि first attempt में prelims किया करना, prelims is the biggest worry इस साल. So pre के लिए आपके 2 पेपर्स हैं, GS और CSAT. दोनों का अलग स्ट्रैटेजी है एकदम. मैंने आपके कोर्स में इनरोल किया था टारगेट UPSC का अगेन प्री क्रैश कोर्स. सर्कल प्रीलिम्स. मतलब मुझे लगता है मेरी तो जर्नी क्रैश कोर्सेज पे चली है. बट 3-4 चीज़ें मुझे लगता है शायद वर्कड आउट. 1 अगेन स्टैटिक. मैंने बहुत फोकस किया था स्टैटिक पे, क्योंकि एक्चुअली मेरा ना क्रैमिंग पावर थोड़ा कम है. मैं रट्टा नहीं मार सकती, तो मुझे हर चीज़ रिवाइज करनी पड़ती है बार बार. दैट्स वाई मैंने प्री 10 बार रिवाइज किया, मैं भूल जाती थी. बट उससे क्या होता है, आपको दिमाग नहीं भूलता, आपको लगता है भूल रहे हो आप. जब वो क्वेश्चन सामने आता तो वो रिटेन आता है. पर क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया था, तो द फर्स्ट राउंड ऑफ प्री का जब मैंने पेपर किया तो मुझे ऑलरेडी 50 क्वेश्चन आते थे. तो मुझे पता था कि अब मेरा प्री निकल रहा है. द मोमेंट मैं बाहर निकली मुझे लगा कि अनलेस 110 कट ऑफ पहुंचने वाली हो, मुझे पता है कि हाँ निकल जाएगा. How was your prelim score? मतलब I haven't checked it. Okay, you didn't check it. I did check so, it. मतलब you're confident after. I am sure कि it'll be more than 105. Okay. तो ये 1 is static. Please focus on static. Current affairs के लिए एक source is more than enough. वो. Second thing that I did was PYQs. अगैन कांट स्ट्रेस इट इनफ. मतलब मैं 2000 तक जाके रिवाइज किया, मतलब PYQ सॉल्व किया होगा फॉर CSE. और CAPF CDS भी कर लिया था 2015 तक का, क्योंकि UPSC अगेन हैज़ थीम्स, इट हैज़ हॉट स्पॉट्स. उसी में से क्वेश्चंस पूछता है. आप उसी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. आपका स्टैटिक बेसिकली फोकस इज जो मेरा स्टैटिक में मैंने पढ़ा है, क्या मैं उसका हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रही हूँ. बस यही फोकस करना है. दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड अगेन कॉमन सेंस एंड कामनेस. आपके पास नहीं में आता ना, आप अगर कुछ देखोगे तो आपने जिंदगी में ऐसी चीजें देख रखी होंगी जिससे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. वाज दैट. फोर्थ आई थिंक करंट अफेयर. एक्चुअली जो रिविजन कर रहे हैं ना, उसमें आप अलग अलग तरीके से रिविजन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक का मैंने एक बार खुद से 2 बार रिवाइज कर लिया. तीसरी बार रिविजन, जैसे आपकी स्टैटिक की भी क्लासेस होती है और करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, तो मैं उसको 2x पे सुनती थी ताकि मेरा ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में रिविजन हो. एंड लास्ट में विच आई डिड डिफरेंटली वाज, मैंने ना माइक्रो नोट्स बना लिए थे जो सिर्फ उन चीज़ों की जो मैं भूलती थी. ऐसे मनी बिल तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन बट आर्टिकल भूल जाती हो, तो आई वुड राइट 110 मनी बिल. और इस तरह से मैंने हर सब्जेक्ट के 4 to 5 पेज में माइक्रो नोट्स बना लिए थे. Things which you would forget every time. Every time I would forget. And the uncommon things. The uncommon. तो कॉमन सेंस से तो कुछ चीजें पता है कि एक जैसे कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट submits, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट. Exactly. Sometimes there is a body which submits a report to directly to parliament. Exactly. So only which body submits to the पार्लियामेंट. सिर्फ उतना है. लोग क्या करते हैं, रिवीजन नोट्स को ना सेम नोट्स बना लेते हैं. हाँ. कोई फायदा नहीं है उसका. आप कम नहीं कर रहे हो अपना कंटेंट, डबल बढ़ा रहे हो. आप डबल बढ़ा रहे हो. इवन हर्षिता सेड कि अब लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाना, शी सेड कि ऑलरेडी इट इज माइक्रो नोट्स एडल्ट में. माइक्रो नोट्स. तो उसमें से भी क्या नोट्स बनाना इज अ वेरी गुड थिंग. यू पॉइंटेड कि यार जो भूल रहे हो सिर्फ वही लिखना है. एंड जो अनकॉमन थिंग ही भूल सकते हो या वही भूल रहे हो ना, तो वो करके. और ये मैंने कब किया, तो मैंने ना अपना लास्ट मंथ, और जो क्योंकि अभी इज इन द लास्ट मंथ, तो मैंने इसी तरह से स्ट्रक्चर किया था कि 1 महीना पहले मैंने अपना व्हाटएवर थर्ड रिवीजन शायद जो मेरा चल रहा था वो स्टार्ट किया.
मेरा एम था कि मुझे 2 हफ्ते में रिवीजन अपने सब सब्जेक्ट्स का खत्म करना है। दैट मीन्ट मैं स्पेक्ट्रम का चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ उसका समरी पढ़ूंगी, और जो मैंने पॉइंट कोई तब मैं भूल रही हूँ वो लिखा होगा वो रिवाइज करूंगी, या कोई हाईलाइट किया होगा तो वो रिवाइज दैट इज द रियल रिवीजन। तभी आप 3 दिन में स्पेक्ट्रम कर सकते हो, नहीं तो मैं इम्पॉसिबल। मैं एक दिन में लक्ष्मीकांत रिवाइज कर देती होती थी, जस्ट बिकॉज एक, और सेकंड इज एक्टिव रिकॉल। आप सिर्फ रीड नहीं कर सकते हो, आपको एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका ब्रेन नहीं यूज कर रहा है। ये मैंने 2 हफ्ते में किया, फिर मेरे पास 2 हफ्ते, और इस टाइम पे भी जो मैं भूल रही थी उसके मैंने माइक्रो नोट्स बनाए। जो मेरे लास्ट के 2 हफ्ते थे मैंने उन माइक्रो नोट्स को 3 बार रिवाइज कर दिया। लिटरली प्री से पिछले रात को बैठ के मैंने अपने माइक्रो नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के रिवाइज किए, ताकि कुछ ऐसा ना हो जो मैंने पढ़ा है और मैं फिर भी भूल रही हूँ। फिर भी गलती कर रहे हो, दैट इज अ ब्लंडर। दैट इज अ ब्लंडर। देखो चीजें वो आएंगी जो आपने नहीं पढ़ी हैं, एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है वो तो आप याद रखो। राइट, तो that help you. that helped me a lot. And I think so you followed current affairs marathon also of Target UPSC. Did you watch those videos? मैं तो आपको दोनों देखती थी, फ्री यूट्यूब वाले भी और अपने वाले भी। मैं तो दोनों देखती थी, मतलब उसमें जब भी मैं ब्रेक, मतलब करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली तो देखती थी, और उसमें एक्चुअली काफी हाई हिट रेट भी था। लाइक आई रिमेम्बर द टॉयलेट डे एंड ऑल, आई हैड ऑलरेडी स्टडीड आपकी क्लासेस से, पर जैसे मैं कभी फ्री हूँ या फिर लाइक लेट्स आई एम टेकिंग अ वॉक या कुछ, तो मैं अपने कानों में बस डाल के जो यूट्यूब पे अगर चल रहा है मैं देखती थी, जो मेरी क्लास में पेड में कवर्ड नहीं है, जैसे कुछ टॉपिक्स होते थे जो कवर्ड नहीं होते थे, तो फिर मैं उसको फट से सुन लूंगी। आई वुड जस्ट लाइक मेक माई नोट्स, ऐसे छोटा, वो भी एक लाइन का। So I would like to ask here, how was your experience with Target 140 plus या जो current affairs जो आपने संकल्प प्रिलिम्स में किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? If you could share with our aspect. आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज ऑफ यू। मेरा पहली बार में प्री निकल गया, जो लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। सम थिंग्स दैट डेफिनेटली हेल्प मी, मैंने सर के आई थिंक सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए, इवन प्री के, विच आर अ लॉट, लाइक पता नहीं 20 25 30 कितने टेस्ट है, जितना इनका मन करता है उतने टेस्ट दे देते हैं सर। Almost 80 टेस्ट थे हमारे, मतलब GS के 50 एंड रिमेनिंग CSAT। एग्जैक्टली, तो मैंने 50 में से कम 40 अटेम्प्ट किए होंगे। हर थर्ड डे आई यूज्ड टू राइट अ टेस्ट, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था। करंट अफेयर्स मैराथन तो सर ना एक डिसेंट लेवल डिटेल में पढ़ाते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट आपको उससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको PhD नहीं करना है किसी भी टॉपिक पे, आपको हर टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप पेरिफेरल आंसर सॉल्विंग कर सको। अगर आपको बेसिक आइडिया है ना, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आई थिंक जो वो सर काफ़ी करते थे, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते थे ताकि बच्चे ओवरवेलम भी ना हो, और वॉल्यूम भी कवर करते थे, तो आई थिंक वो मुझे काफ़ी यूजफुल लगा। बाकी करंट अफेयर्स के साथ में ना, वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट योर क्लासेस, आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे फोकस कर रहे थे। लाइक आप पहले थे जिससे मैंने ये टर्म सुना, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, नॉट जस्ट करंट अफेयर्स। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स इज जो स्टैटिक चीजें आजकल डिस्कशन में है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब स्टैटिक का भी बहुत सारा पार्ट करंट अफेयर्स में न्यूज में होता है, तो एग्जैक्टली, एंड वो हायर प्रोबेबिलिटी एरियाज होते हैं UPSC पूछने के, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो वो वाला जो आइडेंटिफिकेशन था आपकी वजह से, वो मुझे खुद से नहीं करना पड़ता था, तो इट जस्ट बिकेम मच मोर इजियर फॉर मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है करंट अफेयर्स मतलब जो UPSC के जैसे 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टैटिक के इफ यू कंसीडर 50-60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20-30 करंट अफेयर्स रिलेटेड, जो कोर करंट अफेयर्स है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो स्टैटिक के भी क्वेश्चंस है ना, देयर इज अ रीजन व्हाई द स्टैटिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अगर आप फोकस नहीं कर पाओ स्टैटिक पर भी, मतलब अल्टीमेटली आपको फोकस करना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर। आप कौन से स्टैटिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो न्यूज में? अग्री। मतलब जैसे एथिक्स कमेटी इस साल क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, व्हाई इट वाज इन न्यूज़, मतलब द रीजन व्हाई वी टुक इट वाज कि यार वो हमेशा न्यूज़ में आ रहा। ठीक है, वो स्टैटिक का पार्ट बोल सकते हो कि यार स्टैटिक का लक्ष्मीकांत में थी, लेकिन देयर आर 20 कमिटीज, अब उसमें भी आपको एथिक्स पर क्यों फोकस करें? आई एग्री। मतलब सर का ना एक वीडियोस मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, सर ऐसे जस्टिफाई करने के लिए न्यूज़पेपर का आर्टिकल डालते थे या हेडिंग डालते थे, और फिर बोलते थे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड UPSC मेंटालिटी। और ये मैंने मेंस में, वही जो मैं पहले पॉइंट बोल रही थी कि आप समझिए, मैं दिखा रही थी एग्जामिनर कि मुझे समझ आ रहा है आपने मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज मैंने प्री के टाइम में माइंडसेट डेवलप कर लिया था। एंड हमेशा मतलब इवन ड्यूरिंग संकल्प मेंस बैच भी आपने देखा कि बहुत सारे क्लिपिंग्स है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है, एवरीथिंग व्हाट वी टॉट वाज कि यार क्यों सिखा रहा है। एटलीस्ट द स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि यार ऐसे नहीं है रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाया, यार ये न्यूज़ में है, द रीजन इज ये स्टैटिक सिलेबस से लिंक्ड टेस्ट। मतलब मेंस में भी दिस ईयर वी क्रैक्ड सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। मतलब 2023 में जब आंचल ने दिया था तब CCI का क्वेश्चन नो वन कवर्ड। You should hear his interview. CCI का डायरेक्टली वैसे के वैसे
ही रोट, मतलब उसके नोट्स है एंड वही क्वेश्चन पूछा है. इस साल के मेंस में भी वी आर सो मेनी क्वेश्चन, मतलब द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर द मेंस was सर पेपर आपने बनाया है क्या, मतलब क्योंकि उस पीरियड में वी टुक अ लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स, वी टुक टॉपिक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर डायरेक्टली यार कि ये आ सकता है, बिकॉज ये देख रहे थे कि बहुत बार न्यूज में चल रहा था. जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, बहुत बार न्यूज में, तो वी उसमें भी हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स बच्चों को दिए थे कि which are great value additions. ग्रेट वैल्यू एडिशन, कि आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो. अगर उतना भी हो गया ना, दैट एक्स्ट्रा एज, आधा नंबर वहीं पे बढ़ जाएगा, जैसे ही आपने कुछ इस तरह का लिखा जो हर बच्चे ने नहीं लिखा है. एंड दिस अ रीजन, राइट? जैसे आपका लोकपाल, लोकायुक्त सब बोल रहे हैं कि रैंडमली क्वेश्चन आ गया. इट वाज नॉट रैंडम. इट हैड कंप्लीटेड आई थिंक 20 years last year. It was in Hindu का newspaper articles, it was in Indian Express articles. तो obviously वो पूछने वाले थे. It just became important. so there is nothing random. There's nothing random. To be honest, like थोड़े से होते हैं like asteroid कमी, वो भी आई थिंक डैट मिशन की वजह से आया था, क्योंकि उसकी वजह से काफी न्यूज में प्री के टाइम पे हमने मतलब हमेशा न्यूज में रहता ही कि एस्ट्रॉइड दे प्रेडिक्ट कि एस्ट्रॉइड आ सकता है, ये हो सकता है, मतलब कुछ भी रैंडमली नहीं पूछा. यूपीएससी इज ब्रिंगिंग ब्यूरोक्रेट्स इनटू द सिस्टम. उनको कोई ऐसे सुपर जीनियस लोग नहीं चाहिए. एंड वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सब क्वेश्चंस आए, वो भी चाहते हैं कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसलिए भी कि आप लॉजिकली या कॉमन सेंस है कि नहीं, बिकॉज अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप नहीं है तो आप छोड़ दोगे. मतलब व्हाट आई हैव सीन विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज उनको एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो दे गेट नर्वस. आपको प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए. यूपीएससी लिटरली जान के ऐसा 10 क्वेश्चन डालेगा जो आप नहीं सॉल्व कर सकते, ताकि आप स्ट्रेस में आ जाओ और बाकी 90 जो आपको आते हैं वो भी गलत कर दो. राइट. सो नाउ आई हैव अ रैपिड फायर क्वेश्चंस श्योर. and I would like you to answer them in one word. ओके. And let's see how do you answer them. So one word that describes your UPSC journey. Enriching. Enriching. Okay. And one habit that made the biggest difference in your selection. Revision. Prelims or mains, which is the toughest one? Mains. Mains. Much more. Handwritten notes or digital notes? Mixed based on which subject is it. But your preference? So for GS I had handwritten. For optional I had digital, ताकि मैं उसमें और value additions कर सकूँ. Your biggest inspiration? One of the IAS officers I'd interacted with in first year of my college. Most mature IAS officers ever. IIT, IIM, investment banker, left like a crore salary to write civil services and literally changed Punjab. Changed. Any specific? Any name? I don't know if he'll want to be quoted. So Okay. he's now a secretary in Punjab. He's been in the service for like last 25 years. One myth which you would like to burst about UPSC? Randomness. वो तो है ही. That you can't clear it in one attempt. It's not true. Which movie did you watch during it? मतलब any favorite movie which motivated you in your UPSC journey? यूपीएससी जर्नी के टाइम पे तो मैंने कोई भी मूवीज नहीं देखा, बट मतलब you did नॉट एट ऑल. no movie. Any series? मैंने नेटफ्लिक्स पे सबने अनइंस्टॉल कर दिया था. YouTube? सब बंद कर दिया था. मैं यूट्यूब पे सिर्फ क्लासेस सुनती थी. And I think But I used to work out a lot actually. मतलब even during my preparation मैं 1 घंटा निकालती थी ताकि मैं workout कर सकूँ. But one movie that did touch me was Barbie Fail, to be honest. क्योंकि तब मैं prepare कर रही थी और मैं उसका journey देख रही थी, तो would correlate. I started मैं रोने ही लग गई थी last में आके वो movie Okay, so this is common between you and Harshita also. She also saw that movie and मतलब even before the result also she saw that final उसका जो जब selection होता है वो. I तो started crying. Your interview question which you could not answer? They asked me अगर तुम 2030 तक BCG में रहोगी तो तुम्हारा सैलरी कितना होगा, और अगर तुम सर्विसेज में आके फिर 10 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में जाओगी तो तुम्हारा सैलरी कितना होगा. तो लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट बोथ दीज क्वेश्चन बिकॉज आई नेवर थॉट अबाउट इट, तो वो आंसर मैं नहीं कर पाई थी. Any tricky question which you remember कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा? तो उन्होंने मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला. सो वन ऑफ द मेंबर्स आस्क्ड मी कि बाहर यूपीएससी भवन में पार्क में 2 एस्पिरेंट्स बैठे हैं. एक बोल रहा है कि मैं ये पेपर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ द मनी, एंड दूसरा बोल रहा है कि मेरे पास मनी क्या, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दाल खरीद सकूँ.
So, what do you think about this situation? मुझे question ही समझ नहीं आया. Okay. But then I realized कि they were testing me on two things. First was corruption and second was just तभी ना budget में आपका pulse mission आया था. तो they were referring to that. But to be honest, like members, Do not know कि what. पर उन्होंने फिर follow up questions में मुझे clarify करनी start कर दी चीज़ें. तो उस तरह से like And I think so you scored one of the highest marks in inter 210. 210. Okay. How do you rate prelims test series? Are they according to UPSC pattern or PYQs? Test series or PYQs? Always PYQs first. Like अगर आप PYQs बहुत बार कर चुके हैं, let's say it's your second attempt, third attempt, और आपको रट ही चुके हैं PYQs और हर option, then test series. But मतलब I used to do both. क्योंकि आपको test series से आज के क्वेश्चंस पता चलेंगे और PYQ से यूपीएससी के क्वेश्चंस पता चलेंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. बट मार्क्स से डिसहार्टन नहीं होना चाहिए. उसमें वन थिंग आई यूज्ड टू डू इज टेस्ट सीरीज में भी स्टैटिक और करंट दोनों के क्वेश्चंस होते हैं. सी अगर मैं आंसर स्टैटिक का सब कर पाई हूँ एंड लर्न फ्रॉम करंट अफेयर्स. मतलब टेस्ट सीरीज इज फॉर लर्निंग. What I say is, It's if for it's not for testing, it is for gaining that knowledge. यू शुड टेस्ट फॉर स्टैटिक. Yeah, अगर आप स्टैटिक के क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो तो प्रिपरेशन में कुछ मेजर ब्लंडर है. major point. Right. मतलब जो आपके बुक से आ रहा है, बुक्स में है ऑलरेडी और आप नहीं कर पा रहे. अगर कोई लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत है. Okay. If not UPSC, you said you'll go back to BCG. Was IS the only option or मतलब अगर आप IPS होते तो would you have continued the job और आपको लगता है कि सिर्फ IS was the only? तो IAS IFS आई वाज रेडी. IPS पे डाइसी था. IC था. And IRS? तो नीट मतलब सो माय प्रेफरेंस वाज IAS IFS IPS IRS. आई एम नॉट श्योर मैं कैसे रिएक्ट करती. जब वो आता तब मैं डिसाइड करती. ऐसा था. बट आई वाज श्योर कि मतलब ऐसे IRS से नीचे तो डेफिनेटली नहीं ज्वाइन करूँगी मैं किसी भी अपने रैंक प्रेफरेंस को, बिकॉज मुझे हमेशा से पॉलिसी में जाना था. तो एज एन IPS ऑल्सो आपको अब गवर्नमेंट ने सिस्टम इतना फंजेबल कर दिया है कि आप डेपुटेशंस ले सकते हो एंड आप पॉलिसी में जा सकते हो. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैं IPS कंसिडर करी, बिकॉज मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन इज ओनली टुवर्ड्स लाइक मच मोर टुवर्ड्स पॉलिसी. Anything which you would like to change about Punjab, if you reach to the toppest level, if you reach to the secretary level, any specific sector you would love to work? Actually, I put no to my home state. Oh, that's an amazing, that's a very unique. That's also a unique thing. I think I'm a unique person. But that shows the real character in you, that you want to really work for the country. 1 in 1,000 case, I guess. Punjab, you said. I clearly said no. So all of your family is in Punjab? All of my family is Punjab. They're really mad at me. But मुझे ये पता था कि पंजाब में जाके ना मेरे खुद के बायसेस होंगे. जब भी मैं आंसर दूंगी मेरा खुद का एक पर्सनल मोटिव या पर्सनल बैकग्राउंड हमेशा इम्पैक्ट करेगा मेरी आंसर डिसीजन मेकिंग को, विच इज़ नॉट आइडियल. लाइक ऐसा नहीं कि पंजाब में लोग नहीं आएंगे, IAS ऑफिसर्स नहीं आएंगे. वो आएंगे और वो एक नया पर्सपेक्टिव लेके आएंगे. मैं जहाँ जाऊंगी शायद मैं एक नया पर्सपेक्टिव लेके जा सकती. मैंने अभी तक तो नहीं सुना. मतलब you had 10th 12th topper? 12th topper. 12th topper. And why commerce? Any specific reason? I hated physics, that's why. Physics नहीं जब. मुझे physics बिल्कुल पसंद. Like मैं You would have done that, but वो पसंद. हाँ मतलब मैं कर तो लेती ही. तब ये ऑप्शन तब तक NEP नहीं आया था, तो ये ऑप्शन नहीं था कि मैं मिक्स मैथ सब्जेक्ट्स सीख सकूं. तो And how was your college? मतलब कॉलेज में you did well? I scored more than 9 GPA. 9 GPA. Oh, and your first job was through campus placement? Through campus placements. Actually, I was also a part of Inactus. I don't know आपको पता है. It's a student run not-for-profit organization जहाँ पे मैंने अपना social startup start किया था. Okay. तो I already had a startup in college जो कि अब actually like multi-crore company बन चुका है. Oh, yes. मतलब can you explain that? So it's called Pittal and it's तो एक ना craft community है called Thateras near अमृतसर in जंडियाला गुरु. वो हाथ उनका जो क्राफ्ट फॉर्म है यूनेस्को लिस्टेड इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज में लिस्टेड है. लाइक आई थिंक एवरी एस्पिरेंट विल नो द नेम नाउ.
उनका काम क्या होता है, वो ब्रास के ना प्लेट्स को हार्ड से हैमर करके बड़े बड़े यूटेंसिल्स जो आप गुरुद्वारों में देखते हो या पहले घरों में होता था वो बनाते थे. बट अब नो वन बाइज देम बिकॉज दे टू बल्कि, मैकेनाइजेशन हो गया है जिसकी वजह से दैट क्राफ्ट had reduced from 500 families to the last 30 families. It was dying, and as a UNESCO listed craft, government का responsibility है to protect that craft. That's when I stepped in, and that's the DC. I was working with the DC of Amritsar. तब तो DC of Amritsar मैं and we also got some designers on board. हमने उनका craft इतना ऐसा revamp किया कि वो 21st century का needs को meet करे. And now and we did strong market linkages. जिसकी वजह से now it basically have a shop in Delhi. They have a very strong retail like online presence including exports. और अब तो उनको काफी मतलब global recognition मिल रहा है. So I think your interaction with government also मतलब pushed you or motivated you towards this journey, I guess. I think so, yes. मतलब to be honest, आज तक भी अगर मुझे पूछते ना तुम्हारा one of the happiest moments or like memories, I remember जब हमने काम करना स्टार्ट किया, Thateras का इनकम रेंज फ्रॉम लाइक लेस देन 10,000 to 25,000 रुपीज एंड दे पर मंथ. तो एक दिन उनमें लाइक उनका 4 साल का बेटा था एक ठटेरे का, और मैं उनसे पहले मिलती होती तो वो स्कूल नहीं जाता था बिकॉज तब तक लाइक पब्लिक स्कूल्स वर नॉट एक्सेसिबल, प्राइवेट स्कूल्स वर टू एक्सपेंसिव. तो ही केम रनिंग टू मी, इज लाइक दीदी आज मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया, पापा के पास पैसे आ गए. तो लाइक वो मोमेंट मुझे हमेशा याद आता है बिकॉज तब मुझे लगा कि हाँ मैंने जेन्युइनली किसी के लिए कुछ चेंज किया है. वो जो एक फीलिंग था ना कि हाँ मैं ऑन ग्राउंड चेंज ला सकती हूँ, जो कि डीसी सर की वजह से पॉसिबल हुआ था. तो तब मुझे लगा कि हाँ एक आईएएस के पास इतना पावर है कि वो लोगों की जेन्युइन लोगों की लाइफ बदल रहा है. मतलब आपका लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है? मतलब बीइंग सिलेक्टेड एज इन यूपीएससी, एनी मोमेंट? मतलब जैसे आपने ये बताया ये एक इंसिडेंट था, ऐसा if you can remember your journey, your life till now? I don't think ऐसे कोई happiest moments होता है. Every day you have highs and lows. एक consistency maintain करके रख पाना. I think again it comes to चाहे आप कितना भी like ethics में हमें emotional intelligence बताते हैं, not too happy, not too sad. अभी थोड़ा मैं वो करने का try करती हूँ कि because life is too uncertain. तो ऐसा कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट तो नहीं है कि मैं उसे रैक कर सकूं. चलेगा. थैंक यू सो मच मुदिता, and it was wonderful talking to you, and I hope we asked you the right questions. Thank you for having me. चलेगा. Thank you so much, and I hope you get inspired by Mudita's journey and take your preparation to the